Hello students, I am your class teacher Rohit Yadav. Today we will see medicinal use of microorganisms. Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. You know fermentation in previous video. So discovered Louis Pasteur in 1857. Next topic is antibiotics. You heard this name antibiotics when you fall sick and go to hospital with your mother. The doctors give you antibiotics tablet or suspension. You heard this name penicillin, streptomycin, tetramycin, erythromycin. That is some antibiotics. The medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganism. Such medicine are called antibiotics. The medicine which is the stop the growth, stop the growth of disease causing microorganisms. That medicine is called the antibiotics. And there is some example of antibiotics: penicillin, streptomycin, tetracycline, erythromycin. These antibiotics prepared by the help of microorganisms, bacteria and fungi. It means some bacteria and fungi stop the growth some bacteria because they have some special type of chemical which is stop the growth of some bacteria. The chemical is known as the antibiotics. आपने ये तो सुना होगा ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो ऐसे यहाँ भी कुछ है, माइक्रोऑर्गेनिज्म ही माइक्रोऑर्गेनिज्म को बढ़ने नहीं देता है और हम उसी केमिकल का यूज करते हैं जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं. In 1923, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Alexander Fleming, scientist, in 1923 was working culture. Culture means growing bacteria. Growing bacteria is known as culture of disease-causing bacteria. Suddenly he found the spore of little green mold is one of his culture plate. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. Because the presence of mold, the bacteria do not grow. Because the mold secretes some chemical which is stop the growth of the bacteria. In fact, it also kill many of these bacteria. From this mold, penicillin was prepared. Now we use antibiotics penicillin, which is prepared by the mold, जो कि मोल्ड के द्वारा बनती है. मोल्ड इज अ फंजाई. Use of antibiotics. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism. दो बार लिख उठा है, एक ही बार लिखिएगा. And are used to cure a variety of disease. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें वो केमिकल पाया जाता है उनको ग्रो करके एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है. बनाया क्या जाता है, उनकी बॉडी से फिर निकाल लिया जाता है और उसको साफ़ कर लिया जाता है. एंड यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज एंड देन इट्स यूज फॉर द क्योरिंग ऑफ डिजीज. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक microbial infection in animal. Antibiotics are even mixed with the feed. एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर देते हैं भोजन में. लिवस्टक मतलब होता है पशुधन. पशुधन जो पशुपालन होता है उसमें मिक्स कर देते हैं उसके फूड में. एंड पोल्ट्री, और जो पोल्ट्री होती है जिसमें मुर्गी पालन किया जाता है. टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल, और माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए ऐसा करते हैं.
दे आर यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और प्लांट्स पे जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं उनसे बचाने के लिए भी इनका यूज करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द advice of qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need in its future. Also, antibiotics taken unnecessary may kill beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus. इस पूरे पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जब भी आप एंटीबायोटिक्स लें तो डॉक्टर के सलाह पर लें, और डॉक्टर जितना दिन तक बोले आप उतना दिन तक खाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो अगर बीमारी दूसरी बार आपको होती है तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। दूसरी, अगर आप बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपके बॉडी में कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, उनकी भी डेथ हो जाएगी अगर आप बिना किसी वजह के डॉक्टर के बिना सलाह के खाते हैं तो। अगली बात है कि एंटीबायोटिक्स हाइवर नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। ऐसी बीमारियां जो वायरस से होती हैं जैसे कि कोल्ड और फ्लू, इसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। इसके लिए स्पेशल मेडिसिन होती है, एंटीवायरल मेडिसिन, तो एंटीबायोटिक्स उसमें काम नहीं करती हैं। क्यों दवाओं का असर नहीं होता है, थोड़ी सी बात इस पे करेंगे। आप क्लास 8 के बच्चे हैं, पता नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो जान ही जाएंगे। वजह ये होती है कि जो माइक्रोब्स होते हैं किसी भी केमिकल के अगेंस्ट अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। अगर एक बार कोई केमिकल इनके ऊपर अटैक करता है तो ये धीरे धीरे, अगर वो इफ़ेक्टिव है तो ये धीरे धीरे मरने लगते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुई और वो केमिकल देना बंद कर दिया गया, जैसे कि आप दवाई नहीं लिए जब तक डॉक्टर बोलता है, तो ये फिर से खड़े होते हैं और अगली बार उस केमिकल को झेलने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो ये जो आपको बीमारी हुई रहेगी, जो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में रहेगा, वो कई सारे एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर लेगा और फिर कोई भी एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं करेगी। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनका आंसर पा जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो यूट्यूब पर कमेंट करिए, आपकी हेल्प ज़रूर हो जाएगी। थैंक यू।